Good morning students and welcome to online lecture of Sharadi More English School. Today I am going to teach you Geography chapter number 7 population. Okay, this is the last part of this chapter. So till geographical explanation of migration है ना, we have completed. So today I am going to start from here. Population or resource. Okay. So first let's see, there are some questions are given here. Let's discuss the question. Have a discussion on the basis of the following question and answer the following. Okay. So first is, what would you can call the people who work in the places mentioned below? Yes. So the person who are working in these places. So what the exact name or what the exact position of that person who were doing the work in the given places? Okay. So first is farm. Okay. So who is working in the farm? Obviously farmer, right? Factory. Who is working in the factory? Labor or worker, right? Hotel, hospital, shop, schools, office. Okay. Second, what is the age limit of people doing this job? Yes, there is a particular age limit for doing any job, right? So here they ask us age limit about this jobs, means farming, factory, hotel, hospital, means you are doing job in this field, so there must be a age limit. Okay. For which of these job is it necessary to be educated? Yes, obviously ऐसे कौन से जॉब के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है? obviously for school, hospital, hotel, office, factory, almost for all job education is necessary. Okay, so let's start geographical explanation. Okay, population or resource. Population or resource. Population as a resource is important for the economic, social and cultural development. Yes, population as a resource. Now here we are talking about population as a resource. So because of as a resource, it is means population is very important for economic, social and cultural development of any country. Okay, जैसे कोई भी country का अगर economic, social और cultural development चाहिए तो उसके लिए क्या important है? Population. जैसे अदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो उसी तरीके से जो पॉपुलेशन है, अगर हम उसको एज ए रिसोर्स देखें तो वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। rather than population number, it is the quality of population which is important. Yes, so here rather than population number, means rather than population number, it is the quality of population which is important. Yes, अभी अगर हम population को छोड़ दे, राइट, तो उसमें क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अलॉन्ग विद द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी. येस, अब ये जो क्वालिटी हम देखेंगे तो किसके हिसाब से देखेंगे? लिटरेसी के हिसाब से. ओके, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, sex ratio and age groups, health, educational level, etc. are also considered while thinking of population as a resource. Yes, अब जब हम पॉपुलेशन को एज ए रिसोर्स अगर सोच रहे, राइट, तो हम लोगों को क्या चीज़ें देखनी है? जैसे सेक्स रेशियो, मेल फीमेल, एज ग्रुप्स, चिल्ड्रन, अडल्ट, एडोलेसेंट और फिर जो यंग है वो, फिर ओल्ड, राइट. आफ्टर दैट हेल्थ, फिर एजुकेशनल लेवल, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है? कंसिडर होती है. किस चीज़ के लिए? पॉपुलेशन को जब हम एज ए रिसोर्स सोच रहे हैं तब. द सप्लाई ऑफ स्किल और अनस्किल लेबर डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. येस, अब जो भी सप्लाई हो रहा है, जैसे स्किल, कोई स्किल चीज़ें अब सप्लाई हो रही है या फिर कुछ अनस्किल
लेबर सप्लाई हो रहा है, राइट। तो वो जो लेबर होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओके। In the earlier exercise on page 42, you notice that there was an increase in population in town A or B. Yes. अब पेज नंबर 42 पे दैट गिवन वन एक्टिविटी और वन एक्सरसाइज, जिसके थ्रू हम लोग को क्या पता चला, हम लोग ने क्या नोटिस किया है कि जो पॉपुलेशन है टाउन की, टाउन ए और बी, राइट, तो वो जो पॉपुलेशन है टाउन की वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ओके। दैट ओनली मीन्स दैट देयर वॉज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली दैट ओनली मीन्स, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। बट यू कैन से एनीथिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दोज टाउन, लेकिन अब हम उसके वो जो टाउन है उसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हैं। इफ़ देयर आर नो हाउसेज फॉर दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नो एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, देन ऑफ वॉट यूज़ इज़ दिस ग्रोथ ओनली। ऑब्वियसली अगर वो जो टाउन में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, राइट, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वहाँ पर हाउसेज नहीं है, मतलब पीपल्स को रहने के लिए, वहाँ पे एडिक्वेट वाटर नहीं है, राइट, मतलब ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई नहीं है वहाँ पर, तो ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे, तो ये अच्छी बात है, मतलब इट इज़ यूज़फुल और इट इज़ गुड, है ना, ये अच्छी बात है या फिर यूज़फुल है। In this town, for how many people has additional drinking water been made available? Yes. अब ऐसे जो टाउन है तो वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे, हाउ मेनी, कितने पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, एडिशनल ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो अवेलेबल करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्कूल जाना, मतलब स्कूल अटेंड करना जिन्होंने स्टार्ट किए होंगे। और इन विच सिटी आर द पीपल हैप्पियर। अब ये जो सिटी में लोग रह रहे हैं, मतलब जो भी सिटी में लोग रह रहे हैं, तो क्या वो हैप्पी है। ग्रोथ डज नॉट मीन डेवलपमेंट। अब ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या देखना है कि वहाँ पे चेंजेस आना चाहिए, अच्छे अच्छे चेंजेस आना चाहिए, राइट, जॉब की फैसिलिटी होना चाहिए, फिर वो पर्टिकुलर टाउन में रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब हर चीज़ के लिए फैसिलिटी होना चाहिए, हॉस्पिटल की फैसिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी होना चाहिए, तब जाके वो जो एरिया है, वो जो टाउन है, वो क्या होगा, डेवलप होगा, ओके। लेकिन अगर वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है तो और पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो वो क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ओके। और ग्रोथ का मीनिंग हम लोग डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। देन हाउ कैन डेवलपमेंट बी मेजर्ड। अब हम लोग डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे, ओके। For many decades, only a country's gross national product was used for measuring development. Yes. अब बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम से, बहुत डिकेड से क्या होता था, जो कंट्रीज़ होती थी वो क्या यूज़ करती थी, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये यूज़ करती थी किस चीज़ को मेजर करने के लिए, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, ओके। इट वॉज अज्यूम दैट द ग्रेटर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब इससे क्या होता था, मतलब क्या अज्यूम किया जाता था, ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अज्यूम की जाती थी, द मोर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट देखा जाता था, ओके, अज्यूम किया जाता था। बट दिस डज नॉट मीन दैट द पीपल आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दैट कंट्री। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग वो कंट्री में रह रहे वो हैप्पी है, ओके। जो भी क्वालिटी उन लोगों को दी जा रही है, मतलब उनकी लाइफ में जो भी क्वालिटी है वो कंट्री में, तो उससे वो लोग हैप्पी है, हम लोग ये जज नहीं कर सकते हैं। इन रियलिटी डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, अब रियलिटी में क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो किससे रिलेट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से, ओके। द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल देयर एंड फ्रीडम। एक देखो, जो रियलिटी की अगर बात करें हम लोग को, तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है डेवलपमेंट। और रियलिटी में क्या है, देखो जो डेवलपमेंट है वो किससे रिलेट कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब अगर वो कंट्री में लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं वो कंट्री डेवलप्ड हो गई है ना।
हाँ, वहाँ पे हर चीज़ें अच्छी प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू, वहाँ पे हर एक फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है पीपल्स को, वहाँ पे हर एक चीज़ को लेके फ्रीडम है। फ्रीडम मीन्स अच्छी चीज़ों को लेके फ्रीडम है। तो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ओके, रियलिटी ये है। इन द डेकेड्स ऑफ 1980 टू 1990, Mahbub UI Haq and Amartya Sen put forth the concept of Human Development Index HDI. यस, अब देखो 1980 और 1990 में जो महबूब यू आई थे और महबूब यू आई हक एंड अमर्त्य सेन, तो ये दोनों ने क्या किया था, उनका महबूब महबूबुल हक है ना, महबूबुल हक होता है ना। महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन, ये दोनों ने क्या किया था, फोर्थ जो कंसेप्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ये रखा था। ओके, दैट मीन्स HDI, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP publish a list of countries based on HDI score every year. yes, अब ये जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, राइट, UNDP, तो इन लोगों ने क्या पब्लिश की थी, लिस्ट पब्लिश की थी कंट्री की, जो किसके पर बेस्ड थी, HDI पर बेस्ड थी। ओके, HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर बेस्ड थी। ओके, now try this. Try to complete the table on the basis of the information provided about a few countries and write a note on the Human Development Index HDI of various countries. Yes. So आप लोगों को यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, देखो मतलब यू जस्ट हैव टू ट्राई टू कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द फ्यू कंट्रीज़। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसकी बेसिस पे आप लोग को अदर जो कॉलम्स है वो फिल करना है। तो किस चीज़ से रिलेटेड है, देखो ये टेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वेरियस कंट्रीज़ का, उसके ऊपर है। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है HDI रैंक वन, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से रैंक दिया हुआ है कंट्रीज़ को, कौन सी कंट्रीज़ टॉप में है। ओके, फिर कंट्री के नेम है, आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ HDI, मतलब कितने परसेंट वहाँ पे HDI है। ओके, आफ्टर दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, सो हियर नंबर वन पोजीशन इन HDI is Norway. Okay, and what is the value of HDI here, 0.948. okay, and the level of development is very high. Now the second country is Australia. Okay, the value of HDI is 0.939. Now Switzerland is given here, Germany is given here, Denmark, United Kingdom, Japan, Sri Lanka, Brazil, China, South Africa and India. India in the position of 131. Okay, on HDI, Human Index Development. Okay, now what is Human Development Index? The Human Development Index hold an important places in the study of human condition related to the international economic development. Yes, so ये अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या होल्ड करता है, देखो जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती है जिसके बारे में स्टडी कर रही है, ओके, ह्यूमन की कंडीशंस को लेके और रिलेटेड टू इंटरनेशनल इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लेके। ओके, मतलब देखो इन शॉर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या देख रहा है, किस चीज़ को होल्ड कर रहा है, जो ह्यूमन की कंडीशन है रिलेटेड टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, यस, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स जैसे हम लोग ने कोई एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की तो वहाँ पे जैसे जो जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा, मतलब एक कोई एरिया को लेके उन लोगों की कितनी इनकम है ना, तो उसको देखा जाता है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ओके, मतलब इन शॉर्ट इसे क्या बोला जाता है, 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ये कोई जो भी कंट्री का हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख रहे हैं तो वो कंट्री का क्या है, ये 4 टायर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ओके,
और इसी की वजह से क्या होता है, जो कंट्री का जो रैंक है वो उसको मिलता है। यस, इन शॉर्ट देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, तो वो क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल टूल है जो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट है, मतलब वो कंट्री ने क्या क्या अचीव किए हैं, ओके, इन अ पर्टिकुलर ईयर, और जो भी पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ रहता है होता है, तो उसमें उसने क्या क्या अचीव किए, तो उसके हिसाब से वो क्या रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो कंट्री का, ओके। Today it is commonly accepted that only economic prosperity does not mean development. Yes. अब आज अगर हम लोग देखें तो मतलब वो कॉमनली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तो डज नॉट मीन डेवलपमेंट। अब वो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो डेवलपमेंट नहीं है, ओके, उसका मतलब डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज़ नॉट जस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल बट ऑफ अ रीजन और ऑफ अ कंट्री। यस, ये क्या है, मतलब खाली एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन की, और हम मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं ना, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में खाली हम लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के डेवलपमेंट की बात नहीं करें, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो डेवलपमेंट नहीं होती है, ओके। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ यूज्ड एज अ यार्डस्टिक टू मेज़र रीजनल डेवलपमेंट। यस, अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्यों यूज़ किया जाता है, जो मेज़र करने के लिए, मतलब जो रीजनल डेवलपमेंट है, मतलब जो भी रीजन है तो उसका पूरा डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। वाइल कंप्यूटिंग दिस इंडेक्स 3 मेन पैरामीटर्स हैव बीन कंसिडर्ड। यस, अब जब जो भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेज़र करते हैं, चेक करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए उसके 3 मेन पैरामीटर्स हैं, ओके। फर्स्ट है इकोनॉमिक पैरामीटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, मतलब वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, राइट। सेकेंड वन इज़ हेल्थ पैरामीटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, मतलब इंसान वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी है। ऑब्वियसली अगर वो कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की जा रही है तो वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जी सकेंगे, है ना। अगर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो उन लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होंगी, कम होंगी। थर्ड वन इज़ एजुकेशन पैरामीटर, ओके, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब इसमें क्या देखेंगे, स्कूल एजुकेशन, जो एजुकेशन है तो वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कैसी दी जा रही है वो कंट्री में। ये 3 क्या है, पैरामीटर्स है। ये 3 पैरामीटर्स के थ्रू एक कोई भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेज़र करते हैं। द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेंज फ्रॉम 0 to 1। यस, अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम 0 to 1, ओके। हाईली डेवलप्ड रीजन हैव अ वैल्यू क्लोज टू 1। अब जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप रीजन है तो वो कहाँ पे रहते हैं, 1 में रहते हैं, ओके, 1 की पोजीशन पर रहते हैं। एंड एज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट गोज डाउन द वैल्यू ऑफ HDI डिक्रीज। यस, अब जहाँ पे जो कंट्री में जो लेवल है डेवलपमेंट की वो कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, नहीं मतलब बहुत कम हो रही है, तो वो जो है, जो वैल्यू है वहाँ पे HDI की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ओके। इन एन एरिया विद वेरी लिटिल डेवलपमेंट द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज़ क्लोज टू 0। यस, और फिर वो एरिया जो है वो बहुत ही मतलब डेवलपमेंट में वो बहुत ही कम होती है, ओके। और ऑब्वियसली इसकी वजह से जो जो डेवलपमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। Now density of population in Maharashtra, okay, which are the this is a map of state Maharashtra, right. The upside there is a Gujarat, and here upside is Madhya Pradesh, okay, and the right side border there is the Chhattisgarh. So in this map they are showing us the population of 2011 of our state. So let's see some questions related to this map, okay. Which are the most densely populated district? Yes,
सो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, राइट। सो मोस्ट मीन्स देखो 1000 से ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है उसके लिए क्या है, डार्क पिंक कलर है। ओके, सो वेयर इज़ द डार्क पिंक कलर, यस। सो ठाणे और पालघर, ओके, ठाणे और पालघर, दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेम द स्पार्सली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट with a density of less than 100 per square kilometer. Yes, अब now स्पेशली पॉपुलेटेड मतलब बहुत कम जहाँ पे पॉपुलेशन है ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताना है। ओके, मीन्स वहाँ पे जो डेंसिटी है वो कितनी हो, लेस देन 100 पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो उसके लिए क्या है, एकदम लाइट कलर है, देखो दिस वन। ओके, एंड इट मे बी हियर भीड़,